خدا کے خوف اور فروغ میں کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میں آپ سب کی زوردار تعلیم میں دعوت دوں گا، بھائی صاحب کے سامنے اور آپ کی کلام کو نوازا جائے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آپ کی سلامتی ہو، آمین۔ ایکٹیو بیٹھ گیا، سونا نہیں ہے، ناشتہ کیا آپ نے، آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو رہنا چاہیے۔ یہ جو آیت پڑھی ہے خدا کے کلام میں سے، اس کو تھوڑی سی کام کر دوں۔ امثال کی کتاب کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ امثال کس نے لکھی؟ پڑھی ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ کافی لوگوں نے ہاتھ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اس آیت کو پڑھا ہو کسی نے اور اس پر اپنے گھر میں بات کی ہو، یا کبھی یہ آیت آپ کے سننے میں آئی ہو، اور وہ کون سی ہے؟ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس راہ پر اسے جانا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ جوان ہو کر، بوڑھا ہو کر کیا کرے گا؟ وہ مڑے گا، بوڑھا ہو کر بھی وہ مڑے گا نہیں۔ چند سال پہلے میں نے مارننگ پریئر جو ہے یہاں پہ سٹارٹ کی، تو کچھ بزرگ آتے تھے، تو بس وہ بیٹھتے بیٹھتے آمین ہو جاتا تھا، وہ چلے جاتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہے یہ پتہ نہیں وہ کیسی دعا کرتے ہیں، شاید ان کے زمانے میں دعا جو ہے وہ اتنی سکھائی گئی ہے۔ آئیں خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ آپ نے بائبل کھول کے رکھنی ہے، کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ اپنی بائبل لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ میں ابھی چرچ کی استعمال کرتا ہوں، لیکن اپنی بائبل سب کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس بائبل نہیں ہے تو ایڈر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کو بائبل دیں گے۔ اگر کسی کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، وہ آپ ایڈر صاحب کو بتائیں، ہم آپ کو بائبل جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آیتیں ہم نے کافی پڑھی ہیں، آج ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے لڑکے کی اس راہ میں کیا کر؟ تربیت کر۔ تربیت کون لوگ کرتے ہیں؟ استاد؟ یہاں پہ کن کا ذکر ہے؟ کون تربیت کریں گے؟ ماں باپ۔ شاباش، کون تربیت کریں گے؟ ماں باپ کریں گے۔ کبھی ہم نے فیل نہیں کیا، احساس نہیں کیا کہ ہماری بطور والد، بطور والدہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا کریں؟ تربیت کریں۔ کچھ سال پہلے بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی لکی رانی سرکس۔ لکی رانی سرکس میں بہت سارے جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پھر بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑا سا ہاتھی لے کر آتے ہیں اور وہ اپنی سونڈ سے کرتب دکھاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جنگل میں سے پکڑا شیر خون خوار ہے، لیکن جب وہ اس کو اسٹیج پر لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے کرتب دکھاتا ہے۔ ایک چھڑی کے ساتھ جیسے جیسے اشارے کرتا ہے، شیر اسی طرح کی کیا کرتا ہے؟
हरकत करता है। आपने मोहल्ले के अंदर देखा होगा कि बंदर का डांस दिखाने वाला शख्स आपको कभी कभी मिल जाएगा। वो सांप को भी जो है वो निकाल देता है अपनी पटारी में से, तो सांप भी बात मानता है। जब उसकी दुम पर छड़ी लगाता है, सांप अपनी फन फैला लेता है। या फिर आपने देखा होगा कि घोड़े, आज भी आप देखेंगे कि मैं चंद शादियों पर मैंने देखा घोड़ों का डांस, घोड़े किस तरह से नाचते हैं। ढोल वाला ढोल बजाता है जोर जोर से, और घोड़ा जो है वो उसी तरह से नाचता है, और लोग उसके ऊपर पैसे रुपए उछाल करते हैं। तो ये क्या तकनीक, ये क्या तरतीब है कि एक शख्स भी जो है वो इन जानवरों को क्या करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता है। आए खुदा के कलाम से देखें कि ये क्या चीज है, कैसे मुमकिन है कि हाथी, घोड़ा, बंदर, सांप, भूखवा, जहरीले जानदार भी इंसान की छड़ी के मुताबिक जो है वो काम करते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है, लड़के की शराब में क्या कर तरबियत करनी है। तो ये जितने जानवरों का नाम लिया या जिनको मैंने देखा है, वो सारे के सारे तरबियत हासिल करते हैं। उनका एक मास्टर है, उनका एक मालिक है जो उनको ट्रेन करता है, उनको सिखाता है कि उन्होंने किस तरह से, किस धुन पे किस तरह से डांस करना है। वो मास्टर उनको सिखाता है कि उनकी कौन से बॉडी के हिस्से पर छड़ी लगेगी तो उसने कौन सी हरकत जो है वो करनी है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे तो वालिदैन, बिलखसूस टीचर्स जो स्कूल पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं, वो अक्सर गिला करते दिखाई देंगे कि उनके बच्चे बात नहीं मानते, पेरेंट्स की बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उस्ताद के पास ये कंप्लेंट्स आती हैं, पास्टर्स के पास कंप्लेंट आती हैं, एल्डर्स के पास कंप्लेंट्स आती हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि और दायरा इख्तियार के अंदर भी कंप्लेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कंप्लेंट्स आती हैं कि ये एक बेटे ने अपने वालिद को, अपनी वालिदा को घर से निकाल। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? वीडियोस देखते हैं, हम रोज अखबारात में पढ़ते हैं, तो कमी क्या है? तरबियत। मैंने जितने जानवरों का जिक्र किया वो तरबियत याफ्ता, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और जिस ट्रेनिंग के अंदर से वो गुजरे हैं, जिस प्रोसेस के अंदर से वो गुजरे हैं, वो उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारे मास्टर ने क्या कहना है, उनकी छड़ी बताती है कि वो किस तरह से नाचेंगे या कोई हरकत करेंगे। हमारे बच्चे जिनसे हम लव करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि इस आयत में, ये आयत हमारी जिंदगी में नहीं, ये आयत हमारी जिंदगी के अंदर किसी तरह से काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही कि लड़के की सुराह में तरबियत का जिसे दाव पे उसे जाना। अगर उसने सियालकोट जाना हो तो क्या तरबियत करेंगे? ये मतलब है किस राह पे? ये खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम के मुताबिक आपने उसकी क्या करनी है? तरबियत करनी है। तो आए तरबियत का जो मैं पहला हिस्सा आपके सामने रखूंगा, चंद बातें रखूंगा कि यहाँ पे जो लिखा है लड़के की तरबियत का, ये मैं सादे लफ्ज़ों में बयान कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लड़कियाँ भी शामिल हैं, सिर्फ लड़कों की बात नहीं, लड़कियाँ भी उसमें उतनी ही शरीक। बेटी हो बेटा हो, दोनों की जिम्मेदारी वालिदैन की। किताबों में यह कहा जाता है, सिखाया जाता है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है, लेकिन उस गोद में उसने क्या सीखा या क्या इल्म हासिल किया, ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर ही बता सकता है। तो इल्म से वाकफियत,
پہلی بات آپ نے علم سے واقفیت کروانی ہے۔ علم سے واقفیت کیا کروانی ہے؟ ہر بچے کی، ہر ایک بیٹے کی، بیٹی کی جو رغبت رجوع ہے وہ برائی کی طرف جائے گا، اور اس کا سبب یہ ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم جبلی طور پر گناہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ہماری عادتیں جو ہیں وہ جبلی طور پر برائی کی طرف راغب ہوتی ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان عادات سے پھریں، مڑیں، یو ٹرن لیں اور خدا کی راہ پر چلنے والے بن سکیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں؟ نو۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کر چوری کرنی ہے، ڈکیٹ بننا ہے، چور بننا ہے؟ نو۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تمہیں کالموں کی ایک ڈگری حاصل کرنی ہے؟ نو۔ کتنے والدین ہیں جو بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے گلی ہو، محلہ ہو، گھر ہو، بازار ہو، آپ نے فائٹ کرنی ہے، لڑنا ہے، ایک ایک بات پہ لڑائی اور جھگڑا کرنا ہے؟ نو، نہ، کبھی کسی والدین نے یہ تربیت نہیں دی ہے۔ پھر یہ کہاں سے یہ باتیں آتی ہیں؟ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسان جبلی طور پر یا فطرتی طور پر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کوئی ماں نہیں بتا سکتی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے، نہیں بتا سکتی۔ اپنے اندر خواہش پیدا کر سکتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا پھر سائنٹسٹ بنے، یا پھر خدا کا خادم بنے، لیکن یہ ماں ارادہ یا خواہش اپنی زندگی کے اندر کر سکتی ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتی، یقین نہیں کروا سکتی کہ اس کا بیٹا سچ مچ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس کا بیٹا پائلٹ بنے گا، اس کا بیٹا یا پاسٹر بنے گا۔ یہ نہیں بتا سکتی۔ نہ ہی وہ اس کے پیدا ہونے کے بعد یہ بیان کر سکتی ہے کہ اس کا بیٹے کا قد 7 فٹ ہوگا، اس کے بیٹے کا قد یا اس کی بیٹی کا قد جو ہے 6 فٹ ہوگا، لیکن یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اس کی بیٹی یا بیٹے کا قد چھوٹا ہوگا۔ باپ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا بیٹا وزن میں کتنا بڑا ہوگا۔ باپ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بیٹا یا بیٹی اس کے فرمان پر، اس کے حکم پر کتنی باتوں پر عمل کرنے والا بنے گا۔ انجیلوں میں بیان کیا گیا ہے، ایسی کہانیاں، ایسی باتیں ذکر کی گئی ہیں جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بیٹے نے باپ کا انکار کر دیا حکم ماننے سے۔ بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں، لیکن تابعدار اسحاق جیسے بچوں کا بھی ذکر ملے گا۔ مقدس اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم کی ایک ایک بات کا یقین کیا، ایک ایک بات کا آپ دیکھیں گے کہ اس نے تابعداری کی، فروختن رہا۔ لیکن اس کے مقابلے میں قائن اور حابیل کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی دونوں ایک ہی باپ سے ہیں، ایک ہی اولاد ہیں، لیکن کیا کرتا ہے؟ قائن اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیتا ہے۔ کیا ان کی تربیت میں کوئی فرق تھا؟ نبی ہونے کے باوجود کیا ان کی تربیت میں کوئی کمی آ رہی تھی؟ نہیں۔ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا۔ علم دے، علم حاصل کریں۔ جب آپ کے بچے علم اور تربیت حاصل کریں گے تو یقیناً آپ کا دیا ہوا ایک ایک لفظ، اور یہ علم کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے مادری زبان سکھاتے ہیں۔ جو بچے مادری زبان کو سیکھتے ہیں، جس طرح سے وہ زبان کا اپنی زندگی کے اندر احاطہ کرتے ہیں، احساس پیدا کرتے ہیں، وہ اپنے باتوں کو بیان کر کے اپنے احساس کو اجاگر کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات آپ نے اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ علم دینا ہے، ان کو نالج دینا۔ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ نالج۔ ایک نالج کا
ना दीजिए। दूसरी बात, बाइबल, खुदा का कलाम उनको सुनाए, उनको बताए। आज के दौर में कोई ऐसा खानदान होगा जिसमें कोई बच्चा पढ़ा नहीं, बल्कि हर एक खानदान के अगर एक से ज्यादा बच्चे पढ़े हैं, वो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, वो खुदा का कलाम पढ़कर सुना सकते हैं। ना भी ऐसा मुमकिन हो तो फिर खुदा का कलाम ऑडियो में भी मौजूद है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने इस बात के लिए भी इरादा किया कि लोग जो खुदा का कलाम पढ़ नहीं सकते वो खुदा का कलाम सुन ले, और किस तरह से सुने, वो ऑडियो बाइबल उन्होंने उसको तरतीब दिया। खुदा के कलाम की तरबियत तब वो नहीं मुड़ेगा, बूढ़ा होकर भी वो पढ़ता लिखा है, वो खुदा के कलाम की तरबियत को हासिल करेगा। अब खुदा का कलाम किस तरह से हमें अपने बच्चों को सिखाना है? सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो बड़ी आयतें अपने बच्चों को सिखाता हूँ, मैं हर उसकी सालगिरह पर एक मजहबी किताब से गिफ्ट करता हूँ, मैं तो हो सकता है नजमी जो नज़में हैं वो सुनाता हूँ, लेकिन वो सारी किताबें उसने पढ़ ली हैं, उसने नज़में भी अच्छी तरह से याद कर ली हैं, उसने सौदपुर भी याद कर लिया है, उसने मुबारकबादियाँ भी याद कर ली हैं, उसने रसूलों का कीदा भी अच्छी तरह से याद कर लिया है। लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखें, और वो क्या है? ज़बूर 134 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। खुदा अपने कलाम को ज्यादा अजमत देता है, अपने हर नाम को से ज्यादा कलाम को उसने इज्जत दी। खुदा का बंदा दाऊद इस बात का पूरे वसूल के साथ कहता है कि खुदा आज भी अपने कलाम को अजमत देता है। आपकी जिंदगियों में देख खुदा अपने कलाम को अजमत देता है। क्या जब आप खुदा से मांगते हैं आपको नहीं मिलता? मिलता है। क्या जब आप खुदा से कुछ कहते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, क्या आपकी जिंदगी के अंदर सुकून और बेचैनियां जाती नहीं रहती? सुकून आपकी जिंदगी में, इत्मीनान आपकी जिंदगी में आ जाता है? क्या ऐसा नहीं होता? यकीनन जब हम कलाम की बातें करते हैं तो फिर हमारे दिल बाग बाग हो जाते हैं, हमारे जहन जो मुंतशर हुए होते हैं, परेशानियों में गिरफ्तार होते हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं, वो आजाद हो जाते हैं। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर अजमत पकड़ता है, हमारी जिंदगी के अंदर इज्जत पकड़ता है। हम कैसे खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं मेरे दोस्तों? हम खुदा के कलाम के ऊपर कब्र चढ़ा देते हैं और ऊपर रख देते हैं, और जब ऊपर पड़ा रहता है, सालों साल ऊपर पड़ा रहता है, तो घर में इसको रखने से भी बरकत है, लेकिन ज्यादा बरकत, ज्यादा रिस्पेक्ट ये है कि ये कलाम आपकी जिंदगी में आ जाए, ये कलाम आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करे, तो फिर खुदा के कलाम की अजमत पूरी होती है। अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ लेकर आए। बाद बात घरों में जाते हैं तो टीवी लगा होता है, तो आप खुद जो है ना मोबाइल सेन में या किसी और जगह बैठे ना करें। टीवी वाली कोई इबादत नहीं होती। इबादत ये है, खुदा का कलाम कहता है, इब्रानियों का मुसन्नफ बयान करता है, जमा होने से हरगिज़ बाज ना आओ। जमा होने से अगर इसी तरह की बातों का जिक्र होता तो यकीनन सारी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीही होते। यकीनन खुदा के कलाम को आपने इज्जत देनी है। और मुक़द्दस दाऊद ने किस तरह से खुदा के कलाम को इज्जत दी? ज़बूर 119 में लिखा है, उसने कहा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। क्यों? ताकि तेरे खिलाफ, किसके खिलाफ? तेरे खिलाफ गुनाह ना।
आमीन। तेरे खिलाफ क्या करूं? गुनाह ना करूं। ये कलाम की इज्जत है। इसको चूमने से, आर्टिफिशियल तरीके से इसको कपड़े चढ़ाकर इसकी आयतों को घर में लगाने से कोई इज्जत नहीं है, जब तक आपके दिल में खुदा के कलाम के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। आप बाइबल मुकद्दस का इल्म दें, उनको वाकिफ करवाएं, उनको बाइबल का उनको दर्स दें, तो फिर आपके बच्चे जो हैं वो तरबियत याफ्ता होंगे। फिर आप कहेंगे ना बेटा चर्च चलो, तो वो चर्च जाएंगे, कुछ गिरजा में इबादत के लिए जाएंगे। कभी कभी बच्चों को कहते हैं दुआ करो, तो बच्चे कहते हैं हमें नींद आ रही है, हम दुआ नहीं करते। तो क्या करना है? पहली बात क्या बताई? आपने अपने बच्चों को नॉलेज देना है। दूसरा, बाइबल स्टडी करवानी है। तीसरी बात जो बड़ी अहम है, आप बाइबल मुकद्दस में 1000 मरतबा इस लफ्ज को पढ़ा होगा, वो है प्रे। फर्स्ट नॉलेज, सेकंड बाइबल, थर्ड प्रे, दुआ। दुआ कहते हैं खुदा से कुछ मांगना, हर वक्त मांगते ना रहे, बल्कि उसकी शुक्रगुजारी भी करें। जब वो आपकी जिंदगी में बरकतों का नाज़िल करता है, तो फिर आपको खुदा का शुक्रगुजार होने की जरूरत है। तो दुआ बहुत ही अहम है। दुआ आपकी जिंदगी के अंदर नया मोड़ पैदा कर देती है। दुआ आपकी जिंदगी को तब्दील कर देती है। और किस तरह से तब्दील करती है? नाम बाप उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तब्दीली का जिक्र मिलेगा। हमारा नाम बाप उसकी 11वीं आयत में यहाँ पर एक ऐसा शख्स है जो दुआ कर रहा है। खुदा ने उसकी दुआ सुनी, और वो दुआ उसके बच्चों के लिए भी थी। और दुआ का आप बाइबल मुकद्दस में कई मरतबा जो है जिक्र पढ़ेंगे। वो दुआ करना शुरू कर चुके थे, और मसीह उनकी तब्दीली का काफी बड़ा सबूत था। मसीह उनकी जिंदगी में आए, खुदा यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी को बरकत के साथ मामूल कर दिया। इसी तरह पैदाइश की किताब को जब आप पढ़ते हैं, उसके 4 बाब की 22वीं आयत को, तो वहां पर लिखा है कि लोग पहले यहोवा नाम से दुआ नहीं करते। लोगों ने यहोवा आसमान के खुदा के बारे में नहीं सुना था, नहीं देखा था। फिर लिखा है कि लोग यहोवा का नाम लेकर क्या करने लगे? दुआ करने लगे। आप जब दुआ करते हैं तो आप यीशु का नाम लेकर दुआ करते हैं, आप यहोवा पाक खुदा का नाम लेकर दुआ करते हैं। हमें दुआ की ट्रेनिंग अपने बच्चों को देनी है। मुझे एक वाक्य याद आता है, मुझे किसी शख्स ने ये बताया। उन्होंने बताया कि हम छोटे थे तो हम अपने दोस्तों के साथ कंपनी बनाते थे, और उस कंपनी के अंदर हम 3 रुपए या 5 रुपए ऐड करते थे, दूसरे से कलेक्शन करते थे। जब वो जमा हो जाते तो हम इंतजार करते थे हफ्ता का दिन आए, हम सारी रात मूवी देखेंगे, 4 फिल्में देखेंगे। लेकिन एक माँ को इस फ्रेंड्स ग्रुप का पता चल गया, और उसने क्या किया? उसको जब पता चला तो उसने अपने हस्बैंड से बात की, अपने खामद से कहा ताला बाजार से लेकर आओ। उसने कहा ताला, हमारे घर में इतनी कौन सी कीमती चीजें हैं कि हम ताला लगा दें? उसने कहा नहीं, आप जाओ आज ही ताला लेकर आओ। जब बच्चे अंदर आ गए, शाम का वक्त हुआ, बच्चे सारे अंदर थे, तो लाइट स्विच ऑफ कर दी। स्विच ऑफ होने के बाद उसने ताला लगा दिया। अब लड़के ये चाह रहे थे कि हम मूवी देखने जाएं, किसी तरह से दीवार प्लान कर जाए, तो वो जा नहीं सकते थे क्योंकि माँ ने ताला लगा दिया। और पास उसने छड़ी रखी हुई थी बिस्तर पे कि अगर मुझे पता चल गया तो फिर आज इनकी पिटाई होगी। अब ये हुआ, उसने बताया कि हम रात को उठे कि हम चुपके से निकल गए, लेकिन जा नहीं सके, ताला लगा हुआ था। हम छोटे थे, सीढ़ी नहीं थी,
हमने ना सारी रात इंतजार किया कि शायद ताला अभी खुलेगा तो हम मूवी देखने के लिए जाएंगे, लेकिन वो ना जा सकी। सुबह जब नाश्ते का वक्त हुआ तो मान का नाश्ता करना है, पहले दुआ। उनके कपड़े रेडी, उनके जूते रेडी, उनका हदिया रेडी, उनका सब कुछ रेडी। फिर उस माँ ने कहा कि अब आपने क्या करना, इधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना, आपने मेरे साथ चर्च जाना है, खुदा के घर जाना है। और कहते हैं वो बता रहा था शख्स के उस दिन के बाद हम मुसलसल आज तक अपने चर्च जाते हैं, एक भी छुट्टी नहीं करते। हम बीमार हों तब भी चर्च जाते हैं, हम खुश हों तब भी चर्च जाते हैं, हम गमगीन हों तब भी चर्च जाते हैं, हमारे घर में मेहमान आ जाए हम तब भी चर्च जाते हैं, हमारे घर में कोई पत्थर पैदा हो जाए हम तब भी चर्च जाते हैं, हमारे घर में कोई और ऐसी कोई परेशानी भी आ जाए हम तब भी चर्च जाते हैं, छुट्टी नहीं करते। अब वो वादा और 5 बेटे थे, पांचों ने अलग अलग अपनी वादा की पालन किया। बेटे भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारी माँ ने हमारी जिंदगियों को, हमारे बाप ने हमारी जिंदगियों को एक बड़ा मुकाम दिया। और क्या करते थे वो? दुआ। चर्च जाते थे बाकायदगी के साथ। आज अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो दुआ वो लोग बने, दुआया बच्चे बने, तो सबसे पहले ट्रेनिंग तरबियत आपको अपने घर में करनी पड़ेगी। जब आप खाना सर्व करते हैं, आप बच्चों के सामने खाना रखकर उनसे कहें कि आप दुआ करें। खुद माँ दुआ करे, बाप दुआ करे। अगर नहीं करनी आती, आप एल्डर साहब के साथ रब्ता करें, आप किसी मुबश्शिर के साथ, दुआ करने वाले शख्स के साथ, संडे स्कूल टीचर के साथ रब्ता करें कि हम किस तरह से अपने बच्चों को दुआ जो है वो सिखा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? नॉलेज। सेकंड क्या था? बाइबल। तीसरा क्या है? प्रेयर। फोर्थ, चौथा मुद्दा ये है कि हम अपनी कलीसिया में उनको रफाकत करना भी सिखाएं, यूनाइट रहें, यूनाइट होना सिखाएं, अलग अलग कंपनीज ना बनाएं, बैड कंपनी के अंदर ना जाएं, बुरी सोबत के अंदर ना जाएं। क्यों? हमारा यकीन है, हमारे बाइबल मुक़द्दस का ये फैसला है कि हमने खुदा के साथ रफाकत रखनी है, ईमानदारों की रफाकत में रहना है और उनकी सोबत में हमने आगे बढ़ना है। यूनाइट करना, इत्तेहाद में नहीं, बरकत पाएंगे। और किस तरह से ये बरकत आपके खानदानों में, आपके घरानों में होगी? जब आप रफाकत को कायम करेंगे या मसीह में आप मजबूत होंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगियों के अंदर आप बच्चों के रवैयों में भी तब्दीली देखेंगे। आप इस बात पर अमल कर रहे होंगे जो इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, 10वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा, एक दूसरे के साथ जमा होने से बात ना हो। लेकिन आज तो बात रहते हैं, लोग दुआ नहीं करते, जमा नहीं होते, रफाकत नहीं करते। जिथे एल्डर साहब नजर आए दूजी गली, जहां पे पाली साहब नजर आए दुकान में घुस गए कि हमारे साथ कलाम की कोई बात ना हो, रफाकत की कोई बात ना हो। मेरे बुजुर्ग, आपने अपने बच्चों को ट्रेन करना, आपने अपने बच्चों को तरबियत करना है, तो फिर आप उनके साथ खुद अपने घर में रफाकत करना सिखाएं। जब आपकी वो सोबत में रहेंगे, रफाकत में रहेंगे, तो वो पूरे तमाम होंगे। क्या हो जाएंगे? वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे। वो जानते होंगे कि हमारे वालिदैन को हमारे ऊपर यकीन है, वो बेटी हो बेटा हो, वो आपके साथ फ्रेंडली माहौल के अंदर रहेगा, दोस्ताना माहौल उसको मिल जाएगा। वो अपने दिल की बात भी अपनी वालिदा के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ कर सकेगा। लेकिन घरों में तो प्रेशर इतना है, दबाव इतना डाला है कि नहीं बाप से बात नहीं करेंगे,
वादा से बात नहीं करनी, ये बुरी बात है, ये बात नहीं करेंगे। रफाकत में रहेंगे तो फिर आप खुदा की मोहब्बत से भी वाकिफ हो सकेंगे। खुदा आपको इकट्ठा रखना चाहता है, वो यूनाइट रखना चाहता है, वो सुलह में रखना चाहता है, वो आपको प्यार दिखाना चाहता है। मेरे जो यूनाइट रहें, अपनी रफाकत में अपने बच्चों को रखें, तो फिर खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके बच्चे ताबेदार होंगे। जब आप खरूज 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि बच्चों के तरफ से कि वो किस तरह से रफाकत करते हैं। मुकद्दस मूसा ने फ़िरौन के पास जाकर कहा कि हम कबालत करना चाहते हैं। फ़िरौन ने पूछा क्यों करना चाहते हैं? उसने कहा मुझे खुदा ने कहा कि हम कबालत करेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, बूढ़े बूढ़े बाबे जा दो, दुआ करो, कुर्बानी का ईद का लो। मुकद्दस मूसा ने क्या कहा? नहीं, हम अपने बूढ़े भी लेकर जाएंगे, हम अपनी खवातीन भी लेकर जाएंगे, हम अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। हम सब मिलकर खानदान समेत जो है वो खुदा की क्या करेंगे? रफाकत में रहेंगे, खुदा की इबादत करेंगे। ये चैलेंज आपके अपने गिरेबान में खुद जानकर देखें कि मेरे बच्चे कितने चर्चा है। मुकद्दस मूसा कहता है कि हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी खवातीन को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जवानों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, वो भी हमारे साथ इबादत करने के लिए जाएंगे। ये यकीन है, ये मुकद्दस मूसा का ईमान है खुदा के सामने, एक फ़िरौन के सामने गवाही है कि हम किसी को पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो काम काज नहीं करते। बड़ा उनका जुमला जो अक्सर सुनने को मिलता है वो ये है, काम का न काज का दुश्मन अनाज। क्यों ये अल्फाज ऐसे कहे जाते हैं? मुस्कुराने के लिए ये अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं, आप दिल में खुश हो सकते हैं, लेकिन वही बेटा वही बेटी जब सोए रहेंगे, सुस्त रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपके घर से बरकत जो है वो उठती चली जाएगी। लड़के की क्या कर उस राह में तरबियत कर जिस राह पर उसे, क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा गरीब हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नालायक हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मजदूरियां करता रहे? कोई वालिदैन नहीं चाहता। हर वालिदैन ये चाहता है कि उनका बेटा भी ऑफिसर बने। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि उनका बेटी, उनका बेटा अच्छा रिज़्क़ कमाने वाला बने। लेकिन कमी किस पर, कहाँ पे कि हम उनको अखलाकी तौर पर तरबियत दें। यहूदी माशरे में आज भी नौजवान लड़की हो लड़का हो, उनको सिर्फ बाइबल मुक़द्दस की तालीम के अलावा उनको कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखना पड़ता है। वो आज भी कारोबार करते हैं और थोड़े से में, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उनका कारोबार है। पूरी दुनिया के अंदर वो अमीर लोग, क्यों? वो खुदा के कलाम को प्यार करते हैं, वो खुदा के कलाम की बात को मानते हैं। कभी कभी हम अखलाकी तौर पर भी अपने आप को ट्रेन नहीं करते। कैसे ट्रेन नहीं करते? कि हम कहते हैं चलो खुदा ने मेरा दे दूंगे, खुदा ने दे देना कपड़े बड़े नहीं। शादी में जाते हैं, मैंने देखा है, मैं हैरान हो जाता हूँ, इतने महंगे सूट पहने होते हैं, जूता पहना होता है, लेकिन चर्च जाने के लिए हम नॉर्मल लिबास पहनते हैं। जरूर है कि हम नॉर्मल लिबास पहने, लेकिन अपने दिल के अंदर खुशी महसूस करें कि हम जिस तरह से किसी बड़े प्रोग्राम पर जा रहे हैं, हमें खुशी के साथ खुदा के हुजूर में आना है। खुदा का कलाम जब आप पढ़ेंगे, इस्तिस्ना, खरूज, अहबार को आप पढ़ेंगे तो आपको इल्म पड़ेगा कि किस तरह से वो खुदा के हुजूर इबादत करने के लिए, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते थे। वो एक पूरा पूरा हफ्ता अपने आप को तैयार करते थे कि हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है।
ہم نے خدا کے اس پہاڑ کے قریب جانا ہے۔ فاسٹ دور ہے، تیزی کا دور ہے، جلدی سے کپڑے پریس ہو جاتے ہیں، نئے کپڑے مل جاتے ہیں، سلائی نہیں کروانے پڑتے ہیں، یہ سہولتیں ہمارے پاس، لیکن آپ یہ سوچ کر خدا کے حضور آئیں کہ ہم نے خدا سے ملاقات کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری سوال ہے، ہو سکتا ہے ہم ناکام ہوتے ہیں لیکن کامیابی چاہتے ہیں آپ، تو پھر آپ خدا کے ساتھ رفاقت کریں۔ آخری پوائنٹ آپ کو سامنے رکھوں گا کہ کلام کے وعدے ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ صرف حکم ہی نہیں دیتا، یہ کلام ہر وقت نہیں یہ کہتا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ یہ خدا کا کلام آپ کے ساتھ وعدے بھی کرتا ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، تو میں زمین پر تجھے کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا۔ خدا یہ کہتا ہے بھلائی پیدا کروں گا، تیری عمر دراز ہوگی۔ یہ وعدہ ہے خدا کا۔ ان کو کلام کے وعدے بھی یاد لائیں، ان کو برکت کی بات بھی بتائے کہ جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، تو خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں برکت کیا آتی ہے، خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں نے پورے مہینے یہ کام کرنا ہے، اس کے عوض مجھے یہ ملے گا، تو وہ یقین کے ساتھ وہ کام کرتا رہے گا، اور اس رقم کو، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا رہے گا۔ جب آپ کے بچوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کلام کو پڑھنے سے یہ برکت ملتی ہے، اس کلام کو پڑھنے سے یہ برکت ملتی ہے کہ ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں، تو آپ خدا کے وعدے بھی ذہن نشین کرواتے ہیں۔ رات چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے اپنے بچوں کو کیا کر تربیت کرنا، ان کو سکھانا۔ خدا کا کلام ان کو ہم اس طرح سے سکھائیں، ان کو وعدے جو ہیں وہ یاد کرواتے رہیں، بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے رہیں۔ یہ کلام نے نہیں لکھا کہ آپ نے سنڈے کے سنڈے ہی صرف 2 گھنٹے عبادت کرنی ہے، بلکہ لکھا ہے بلا ناگا بغیر چھٹی کے، بغیر ناگے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا۔ مقدس ایوب کو دیکھیں تو مقدس ایوب جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کا انتظام کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے وقت کے لیے ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کو ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد ہم خدا کی کتاب زبور سے پہلے آئے گا، زبور سے پہلے ایوب کی کتاب آئے گی، زبور سے پہلے جو ہے وہ ایوب کی کتاب آئے گی، ایوب پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہوگا، یہی ہمارا چیلنج ہوگا۔ ہم نے عملی طور پر کیا کرنا ہے، والدین نے کیا کرنا ہے، بچوں نے کیا کرنا ہے، یہی بات 5ویں آیت کے اندر لکھی ہے۔ اگر کوئی پڑھ دے ایوب پہلا باب اور اس کی 5ویں۔ خدا دے کلام دے وچ لکھا ہے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا، اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ آمین۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی، یہ باپ ہے، وہ اپنے گھرانے سمیت، اپنے خاندان کے سمیت کیا کرتا تھا، کیا سوچتا، اس کا مائنڈ کیا ہے، اس کا فیتھ کیا ہے؟ اس کا فیتھ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹوں نے خدا کے خلاف کوئی کام کیا۔ کتنے لوگ جو ارادہ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ شاید
मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने खुदा के खिलाफ कोई काम किया, खुदा उनको मुआफ करेगा। यकीनन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ज़रूर इसको घर जाकर भी पढ़ें। मेरा चैलेंज जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो यही है कि हम कदस यूब की तरह खुदा के ज़रूर अपने हदिये नजराने पेश तो करते हैं, लेकिन इस हदिये को भी पेश करें जो दिल से है। और वो दिल से हदिया क्या है कि शायद मेरे बच्चों ने कुछ खता की हो और अपने दिल से खुदा की तकबीर की हो, खुदा का इनकार किया हो। इस गुनाह से बचें, इस जुर्म से बचें, इस खता से खुद को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लड़के, आपकी लड़कियां, आपके बेटे, आपकी बेटियां एक अच्छे मसीही खानदान बने, तो फिर इस बात पर अमल कीजिए। और वो बात क्या है? लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है। आमीन। लड़के की उस राह पर तरबियत, वालिदैन के फराइज़ में ये अव्वल तरजीह है। अगर आज से पहले आपने ये काम नहीं किया तो मुकद्दस अय्यूब की तरह आप दुआ शुरू कर दें, उसकी तरह आप अपने दिल में इरादा कर लें कि हो सकता है मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने खुदा के खिलाफ कोई काम किया। पता तो बाद में लगेगा, लेकिन आप पहले ही खुदा के लिए आए। खुदा ने आपके कलाम के वसीला से आप सब को सिर्फ कुछ दुआ मांगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, खुदा उनसे कहें